बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम का थर्ड चैप्टर है द जर्नी, जो कि तैमसुला आओ ने लिखा है। तैमसुला आओ एक इंग्लिश पोइटस हैं और वो भारत से ही हैं। वो आसाम से बिलोंग करती हैं और उन्होंने जो है नागालैंड के कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है और एमए उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आसाम से किया था। तो अब करते हैं टेक्स्ट। द स्क्वीलिंग ऑफ अ पिगलेट विच एस्केप्ड टू द मेन रूम where they were sleeping awakened the young girl. It was still dark, but she was already alert because this was the day that she was returning to her boarding school. The winter vacation of nearly 2 months seemed to have gone by very quickly, and she was feeling a little disturbed at the prospect of having to undergo another drastic change of environment. She still remembered clearly each detail of journey which had brought her from the plains of Assam to her village in the Naga hills. After the journey from her school to the foothill town of Mariani, she had spent the night in the loft of a kindly shopkeeper. In the morning, she saw the women of the group cooking rice and curry, enough for 2 meals, one to eat before they set out, and another to be eaten at noon when they reached the halfway point of their journey. The rice that was cooked came from each member of the party because it was the custom for villagers to carry sufficient provisions which would last them for their journey. A large common pot big enough to cook for the group was carried by one member, and every time they had to prepare a meal, each one put in a cupful of rice from the store of rations they carried. पिगलेट होता है सुअर का छोटा बच्चा। तो उसकी चीखों ने जो दौड़कर उसके मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया था जहां वो सब सो रहे थे, उस छोटी सी लड़की को जगा दिया। अभी भी अंधेरा था, परंतु वो चौकन्नी हो गई क्योंकि अब उसको वापस अपने बोर्डिंग स्कूल जाना था। सर्दी के लगभग 2 माह की छुट्टियों में ऐसा होता था कि बहुत जल्दी ही वो ख़त्म हो गई और इससे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील कर रही थी क्योंकि वहाँ पर उसको फिर से वहाँ पर मुसीबतों को झेलना था। उसे आसाम के मैदानी क्षेत्र से नागा पहाड़ियों में जो स्थित उसके गांव तक की यात्रा का सफ़र अच्छे से याद है। उसके स्कूल से पहाड़ी के नीचे तक जो है मरियानी कस्बे तक की यात्रा के पश्चात उसने जो विनम्र भाव वाला दुकानदार था उसके वहाँ पर रात बिताई थी। सुबह सुबह उसने उस गुट की 2 महिलाओं को देखा कि जो खाना बना रही थी, कढ़ी चावल बना रही थी। तो उसने देखा कि वो 2 टाइम का खाना बना चुके थे और जो चावल पकाए गए थे वो दल के हर सदस्य की तरफ से आए थे क्योंकि उनके गांव की ये प्रथा थी कि जितनी ज़रूरत होगी तो उतना सामान खाने का वो अपने साथ लेके चलें। एक सब बहुत बड़ा बर्तन लेके चलते थे साथ में जिससे कि सबका खाना उसमें पकाया जा सके, और एक सदस्य उठा कर ले जाता था और बाकी लोग उसमें अपने राशन में से एक एक कप जो है बर्तन में चावल वगैरह डाल देते थे। आफ्टर अ कोल्ड एंड रेस्टलेस नाइट द यंग गर्ल वॉज हंग्री एंड एट voraciously. She wondered if her brother too had brought provisions or if he had worked out some other arrangement with a distant cousin who was with this particular group. The firewood required for cooking meals had been gathered at the foothills before the start of the journey. बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर और रात के बाद उस लड़की को बहुत भूख लगी थी और उसने पेट भर के खाना खाया। उसको बड़ी उत्सुकता भी थी कि क्या उसका भाई भी खाने का सामान लेके आया था या फिर जो उनका कज़न था, चचेरा भाई, क्या उसके साथ उसने कोई व्यवस्था कर ली थी। जलाने वाली लकड़ी जो ज़रूरत थी भोजन पकाने के लिए वो पहाड़ियों ने पहले से ही इकट्ठा कर ली थी। सुबह के खाने के बाद सभी लोग जो उस दल के टोली के थे वो तेज तेज जो है लाइन बनाकर चलने लगे। एंड आफ्टर द मॉर्निंग मील द पार्टी सेट ऑफ एट अ brisk pace in a single file, every member's basket laden with salt, dry fish, soap, bottles of hair oil and even kerosene oil for the lamps. These were purchased with the money they earned by selling oranges, ginger, yam and at times special sticky rice. Such journeys were possible only during the winter months because the many hill streams and rivers that crisscrossed the terrain could only be traversed when the water level was down, just knee deep at points. The villagers would cross in groups, holding one another's hands so that they did not get swept away by the swift currents. तो अब वो लोग पंक्ति बना के चलते थे और हर एक की सदस्य में की टोकरी में नमक, सूखी मछली, साबुन, तेल, बोतलें, लैंप के लिए मिट्टी का तेल और ये सब चीज़ें होती थी।
और ये वो इन पैसों से खरीदते थे जो कि उन्होंने संतरे, अदरक, शकरकंदी या कुछ चावल बेचकर कमाए थे। ऐसी यात्राएं सिर्फ सर्दी के मौसम में ही पॉसिबल होती थी, क्योंकि उस समय पहाड़ी नाले और नदियाँ जो है वो आपस में काटते हुए चल रही होती थी और उनको लांघा जा सकता था, क्योंकि उनका जल स्तर नीचे होता था। कुछ स्थानों पर तो घुटनों तक पानी होता था, तो सभी गांव के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको जो है पार करते थे, और ताकि नदी में ना बह जाएं। It was one such group that her brother had teamed up with when he came to escort her from her school to the village. The early start ensured that the travelers would reach home before sunset. और ये इस प्रकार का दल था जो उसके भाई जो जिसके साथ उसका भाई जुड़ गया था, क्योंकि उसको स्कूल से गांव तक उसको अच्छे से लेके आना था, और जल्दी ही चलने का अर्थ था कि भाई सूर्यास्त से पहले वो अपने घर पहुंच जाएं। She remembered again how her brother walking behind her would urge her to walk faster, telling her, "Faster, faster, in the evening tigers roam these jungles." In spite of the fearful prospect, she could not keep pace with the others, and when they reached the halfway mark on the banks of the Disoi River, the others were waiting impatiently for their arrival. अब उसका भाई उसको बार बार में याद दिलाता था, जल्दी चलो, यहाँ जंगल में बहुत सारे टाइगर्स हैं। तो इस डर के बावजूद भी वो उन लोगों के साथ अपनी स्पीड जो है वो नहीं मिला पाती थी, और जो है दिसोई रिवर के किनारे पे पहुंच के वो बहुत थक गई थी। और जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि और लोग उनके आने की बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सम हैड इवन ओपनड देयर लीफ पैकेट्स ऑफ राइस एंड करी रेडी टू स्टार्ट एज सुन एज एवरीवन अराइव्ड. Some women from the group came over to the young girl and dropped some pieces of meat on her leaf plate. As a result, she had a huge mound of rice and many pieces of meat which she could not finish. तो जैसे वो आए तो कुछ लोगों ने अपने लीफ के पैकेट जो है चावल के और सब्जी के खोल लिए थे, और जैसे ही वो आए तो कुछ औरतों ने उसकी प्लेट में भी कुछ पीस ऑफ मीट के टुकड़े और कुछ चावल रख दिए। इतना ज़्यादा खाना उसको मिल गया कि वो उसको ख़त्म नहीं कर पाई। When she was about to throw away the leftover food, her brother scolded her. "Don't do that. Pack up everything and carry it in your bag." After they had eaten, they entered the river. The water was knee-deep for the adults, but reached up to her eyebrows. Her brother and another man hoisted her up, each putting his hand up under an armpit and safely carrying her to the other bank. जब वो खाना पूरा ख़त्म नहीं कर पाई तो उसको फेंकने लगी थी, तो उसके भाई ने उसको डांटा कि ऐसा मत करो और इसको पैक करके अपने बैग में रख लो। जब वो नदी को पार करने लगे तो बाकी लोगों के तो घुटनों तक पानी था, पर उसके तो आईब्रोज तक, बूहों तक पहुंच गया था। तो उसके भाई ने और अन्य लोगों ने उसको उठा लिया और उसको दूसरे किनारे तक ले गए। नाउ ऑन दिस मॉर्निंग व्हेन शी वुड हैव टू मेक द सेम जर्नी अगेन, क्रॉस द सेम रिवर एंड ट्रैवल फर्दर either by train or bus to her boarding school, she was full of misgivings. The racket created by the piglet had awakened her aunt, and she was trying to prod the huddled figures wrapped in torn blankets asleep on mats on the floor. She got up first and, going to her tin case, checked that her favorite dress, which her cousin was eyeing all winter, was there. In no time at all, a simple meal was cooked by her aunt, and after eating this, the young girl and her brother stepped out of the house to begin the journey back. Even though it was still dark, it was imperative that they make this early start in order to get a connecting bus or train to her school town. अब इस सुबह उसको फिर से वही यात्रा करनी थी, नदी पार करनी थी, या तो फिर उसके बाद फिर रेल या बस से उसे बोर्डिंग स्कूल जाना था। अब उसको चिंता हो रही थी, और सुअर के बच्चे द्वारा मचाए गए शोरगुल में उसकी चाची भी जाग गई थी, और उसने जो है वहाँ पर फटे हुए कंबलों में लिपट कर फर्श पर के ऊपर पड़ी वो सोती ही रही। छोटी लड़की अब सबसे पहले उठी और उसने अपना टिन वाला ट्रंक खोला। तो उसने पहले ये चेक किया कि जो उसकी सबसे फेवरेट ड्रेस थी, जो कि उसकी कज़न को बहुत पसंद थी, अपने चाचा की बेटी को, तो वो वहाँ पर थी कि नहीं। बहुत जल्दी उसकी आंटी ने बहुत सिंपल सा खाना बना के दिया, और उसे खाने के बाद वो और उसका भाई अपनी जर्नी को फिर से शुरू कर चुके थे। अभी अंधेरा था, लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि जल्दी चलेंगे तो उनको स्कूल तक फटाफट जो है कोई ना कोई बस या रेल मिल जाएगी। In the journey up the hill was difficult. She found that climbing down the narrow perpendicular steps cut into the hillside
वॉज इक्वली डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट मोर डेंजरस। अब पहाड़ी की चढ़ाई वाली यात्रा बहुत कठिन थी। उसने देखा कि पहाड़ियों पर जो है परपेंडिकुलर जो है समकोण पर सीढ़ियाँ हैं वो जो बहुत ख़तरनाक थी, और उन वहाँ पे उसने एक जोड़ी जूते पहन रखे थे। शी वॉज वेयरिंग अ पेयर ऑफ शूज़ गिवन टू हर बाई अ सीनियर एट द स्कूल हॉस्टल हु वॉज टायर्ड ऑफ दैम। वो उसके एक सीनियर ने दिए थे जो जिसका कि मन भर चुका था इन जूतों से। दिस वॉज द फर्स्ट डिसेंट पेयर ऑफ शूज़ शी हैड सिंस हर पेरेंट्स डाइड एंड शी हैड बिन सेंट ऑफ टू द मिशनरी स्कूल टू कंटिन्यू हर स्टडीज़ देयर। ये उसको पहली बार कुछ अच्छे ढंग के जूते मिले थे उसके पेरेंट्स की मृत्यु के बाद, और जब से उसको मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। She was determined to leave the village in style because they were not allowed to wear shoes at school, but she soon realized how difficult it was to walk fast in a pair of shoes a size larger than her feet. अब वो गांव से तो बड़े स्टाइल में निकली थी जूते वगैरह पहन के, लेकिन उनको वहाँ पर स्कूल में इस तरह के जूते नहीं पहनने दिया जाता था। अब उसको महसूस हुआ कि बहुत मुश्किल है अपने पैर के साइज से एक नंबर बड़ा जूते पहन के चढ़ाई चढ़ना। So she took them off and trying them together with the laces, strung them around her neck like a garland. They were now dangling at an awkward angle and adding to her woes. Seeing her plight, a kindly woman who was travelling with them offered to carry the shoes in her basket. Tinula was greatly relieved. After what seemed like ages, they reached the plains and journey became somewhat tolerable. By now the sun was up and its rays were penetrating the thick foliage, creating an unbelievably ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अब उसने उन जूतों को निकाला और लेसिस को बांध के अपने गले पे डाल लिया जैसे कि कोई माला पहन ली हो, और उसको बड़ी मुश्किल हो रही थी उनको पहन के चलने में। तो एक औरत ने उसको ऑफ़र दिया कि मैं अपनी टोकरी में रख लेती हूँ, और इससे उसको बड़ा आराम मिला। और उसको लगा कि बहुत युगों के बाद अब वो जब सैमतल मैदान में आए तो भाई अब चला जा सकता है। और अब तक सूरज भी ऊपर आ गया था और किरणें जो हैं वो अच्छे से उनके ऊपर गिर रही थी सूरज की, और वहाँ पर उनको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। शी कुड हियर द वेरिड टोन्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स फ्लिटिंग फ्रॉम द ब्रांचेस एंड कॉलिंग आउट टू ईच अदर, बट द ट्रैवलर्स हैड नो टाइम टू स्टॉप एंड लुक और लिसन टू एनीथिंग। दे हैड टू कीप अप अ स्टडी पेस, स्पेशली तिनुला एंड हर ब्रदर तेमजेनबा, एज दे हैड टू रीच मरियानी बाई 4 in the afternoon। अब उसको बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ें सुन रही थी, इतनी सुंदर सुंदर आवाज़ें आ रही थी, सुंदर सुंदर पक्षी थे, और सभी ट्रैवलर्स को वो सब सुन रहा था, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो रुक के ये सब चीज़ें देखें और सुने। तो उनको जो है अपनी लगातार जो स्पीड है वो बनाए रखनी थी, खासकर तिनुला और उसके भाई तेमजिबना को, क्योंकि उनको मरियानी जो है वो 4 बजे तक पहुंचना था दोपहर के। एट वन पॉइंट आफ्टर द पार्टी नेगोशिएटेड अ पडल by walking over a fallen log, they came across a peculiarly shaped depression and fresh dung near it, upon which the rays of the afternoon sun shone directly. एक स्थान पर जब दल ने एक बरसाती डवरी को इसके ऊपर गिरे हुए लकड़ी के लट्ठे के ऊपर से गुजरकर पार किया, तो उन्होंने एक बहुत अजीब सा गड्ढा देखा, और वहाँ के पर नज़दीकी ताज़ा गोबर था जिसके ऊपर तीसरे पहर की सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी। Tinula's brother exclaimed to the older woman, "Auntie, there must be elephants here. Look at the trees. All the bark has been eaten up, and we really have to hurry up. We cannot wait here for the elephants to pass." The woman replied, "Do not worry, nephew. They have already crossed our route. Look at the break in the forest to your left. They have gone to the other side away from our path." Tinula wondered how the old woman knew this, because to her the forest looked the same everywhere. अब तिनुला के भाई ने जो है उस बहुत तेज़ी से चिल्लाया अपने से बड़ी औरत के सामने कि आंटी पक्का यहाँ पर हाथी है, उन पेड़ों को देखिए वो पूरी छाल खा चुके हैं उनकी, और हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। तो उस औरत ने जवाब दिया, अरे भतीजे फ़िक्र मत करो, वो हमारे रास्ते से पहले ही जा चुके हैं, तुम अपने बाईं तरफ देखो जंगल के, वहाँ वो उस मार्ग से चले गए हैं। तिनुला को बड़ी हैरानी हुई कि इनको कैसे पता चल जाता है, उसे तो जंगल हमेशा एक जैसा ही दिखाई देता है। Just like her journey to the village earlier, they ate their midday meal on the bank of the almost dry river, and once again Tinula was helped by her brother and another man to cross the river. When they reached flatter land, the direct rays of the sun began to burn into the young girl's skin, making her feel thirsty and itchy. But she had to keep up with the others who had increased their speed. Sometimes she found herself running to catch up with them, afraid that some wild animals would spring out of the forest and devour her.
गांव तक अपने पहले वाली यात्रा की तरह उन्होंने उस दिन भी भोजन लगभग सूखी पड़ी उस नदी के किनारे पर ही खाया। और फिर तनुला की मदद उसके भाई ने और अन्य आदमियों ने की। जब वे मैदानी भाग में पहुंच चुके थे तो वहां पर सूर्य की सीधी किरणें उस लड़की के ऊपर जब गिर रही थी तो उसको बड़ी खुजली होने लगी और प्यास भी महसूस हुई, लेकिन उसको चलते रहना पड़ा और तेज गति से, क्योंकि नहीं तो वो पीछे रह जाएगी और उसको डर था कि नहीं तो जंगल के जानवर उसे खा जाएंगे। The winter sun was almost setting when Tinula and her brother reached the railway platform. There was no time to purchase tickets, so they simply jumped onto the train and immediately chugged out the station. It was one of those suburban trains which stopped at all kinds of stations, sometimes to take in a single passenger, and once or twice it stopped even when there was no one. All this while she and her brother were standing, holding on to the window frames to keep from falling. After some time, Tinula felt a tap on her shoulder. A man was pointing to a small space beside him. She tried to sit, but the space was so small that she had to turn sideways to keep her bottom on the hard wooden plank of the seat. No matter, she was grateful for the edge hold, and leaning her head on the wall, she began to doze off. अब तिनुला और उसका भाई रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे, तो ठंड की वजह से सूर्य जल्दी ही डूब रहा था। टिकट खरीदने का उनके पास समय ही नहीं था, तो वो तुरंत ही रेल में कूदकर चढ़ गए और ट्रेन जो है अपनी गति के साथ स्टेशन से चल पड़ी। ये एक सबर्बन एरिया था और यहाँ पर ये कभी कभी तो एक यात्री के लिए भी ट्रेन रुक जाती थी और कभी कभी ऐसी जगह भी रुक जाती थी जहाँ कोई यात्री होता ही नहीं था। तो अब जब ये ट्रेन में चढ़ गए थे तो इनको सीट नहीं मिली थी, लेकिन एक बड़े से आदमी ने इसको इशारा किया और बैठने के लिए थोड़ी सी जगह दी, लेकिन वो जगह काफ़ी कम थी और उस लकड़ी के फट्टे पर खुद को बिठाने के लिए उसको मुड़कर बैठना पड़ा। लेकिन वो फिर भी उस सहारे के लिए बहुत ही ग्रेटफुल थी, एहसानमंद थी और अपना सिर जो है दीवार पर झुकाकर वो ऊँगने लगी। At one of the small stations, when the train stopped for a little longer than the earlier stops, Tamzemna went out quickly and bought 2 singaras and 2 single cups of stale tea. Single in tea stall jargon meant half a cup served in a small earthen cooler to make it look full. The singara was cold and the tea too did not taste like tea at all, but it was some food and Tinula was grateful for that. After what seemed to be an endless jostling and bumping, the train finally stopped at its last station called Farketing. It was the station nearest to the boarding school. From here they had to travel still further to reach it, but it was nearly midnight and the whole station area was deserted. Even the station master was now locking up his little room at an office. Holding up a hurricane lamp, he was looking this way and that to ascertain that everything was in order. Tamzenba was greatly worried. How could they walk to the school, a distance of about 3 or 4 miles in the middle of a dark winter night? इन छोटे छोटे स्टेशनों में से एक स्टेशन पर जब ट्रेन पिछले स्टेशन से थोड़ी देर ज़्यादा के लिए रुकी तो तेमज़ेनबा जल्दी से भाग के गया। 2 समोसे और बासी चाय की 2 सिंगल वाली प्यालियाँ ले आया। चाय के स्टॉल वाली भाषा में सिंगल का मतलब था मिट्टी के छोटे से कुल्हड़ में दी गई आधा कप चाय, जिसमें वो पूरी भर दिखाई दे रही थी। समोसा ठंडा था और चाय बिल्कुल चाय जैसी लगी नहीं रही थी, फिर भी उनके लिए एक भोजन था और तिनुला इसके लिए उपकार मान रही थी। इस भीड़भाड़ व झटकों के बाद जिसको यूँ लगा कि कभी अंत होगा ही नहीं, गाड़ी लास्टली फरकाटिंग नाम की एक जगह पर रुकी। यह स्टेशन बोर्डिंग स्कूल के सबसे नज़दीक था और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी और भी सफ़र बाकी था, लेकिन अब आधी रात हो चुकी थी और स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर भी अपने छोटे कमरे को बंद कर रहा था। तेज़ हवा में ना बुझने वाली लालटेन उठाकर वह नज़र दौड़ा रहा था कि सब ठीक हो, और तेमज़ेनबा बहुत चिंतित था कि अंधेरी रात में और इतनी ठंड में वो 3-4 मील का फासला पैदल तय करके किस प्रकार से आगे पहुंचेंगे। He stood for some time wondering what to do next when suddenly out of the darkness a man approached him asking where they were going. When Tanzenba gave the name of the school, the man replied, I am going a little farther but will pass by the school. I can drop you and your sister right at the gate of the school. This seemed like a boon from heaven itself. And so, grabbing hold of Tinula's hand, he followed the kind man to a waiting car. In later years, Tinula was to realize that the big car in which she and her brother had sat squeezed tightly among the other passengers that night had been an ambassador. अब वो हैरत में था, बहुत परेशान था, सोच रहा था कि आगे क्या करे। तभी अचानक से अंधेरे में एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि कहाँ जाओगे तुम। तब तेमज़ेनबा ने स्कूल का नाम बताया और वो बोला कि मैं उधर से ही जा रहा हूँ।
तो स्कूल के पास से ही गुजरूंगा, तुम और तुम्हारी बहन बैठ जाओ और तुम्हें गेट पर मैं उतार दूंगा। तो उनको लगा कि ये तो कोई स्वर्ग से ही बहुत बड़ा उनको आशीर्वाद मिला है और वो कार में बैठ गए। कई वर्षों तक जो है तिनुला को लगा कि वो बड़ी कार जिसमें वो और उसका भाई सिकुड़ कर बैठे थे वो एक एम्बेसडर कार थी। At the school, her brother first dropped the tin trunk over the top of the gate, then hoisted Tinula over it, and finally jumped in himself. He then processed towards the superintendent's bungalow. After much knocking, the lady herself opened the door to her office. She was annoyed at first for having been awakened at this unearthly hour, but when she saw the shivering duo, she quietly went inside and came out with a torch, saying to Tamzenba, "You can go now." स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले तमज़ैनबा ने तो टीन के ट्रंक को गेट के ऊपर से अंदर फेंका और फिर तिनुला को उसके ऊपर बिठाया और ख़ुद भी गेट के अंदर कूद गया। उसके बाद सुपरिटेंडेंट के बंगले की ओर बढ़े। काफ़ी खटखटाने के बाद महिला ने जो है ऑफिस खोला और वो बहुत गुस्सा हो गई कि इस समय तुम लोग क्यों आए हो, लेकिन उन दोनों को ठंड में ठिठुरते देखा तो वो आराम से अंदर चली गई और एक टॉर्च लेकर तमज़ैनबा को बोला कि तुम अब चले जाओ। He merely nodded at his sister and without a word retraced his steps towards the gate at the dark night. उसने अपनी बहन की ओर देखा और सिर्फ ना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वो गेट और अंधेरी रात की तरफ मुड़ गया। The superintendent took Tinula to the school infirmary which was temporarily being used to keep latecomers overnight after the holidays. Since there was no extra bed that night, she was allowed to share the one in which her friend Winnie was sleeping. Tinula washed her feet as best as she could and crept into the warmth of the bed, where very grudgingly Winnie made some space for her. She was struck immediately by not only the warmth of the bed after her cold and long journey, but also by the softness of the sheets. She was suddenly reminded of her last night in the village, when she had to fight for her share of the tattered blanket with her cousins, and how she was awakened by the squealing of the piglet in the early morning. The transition from that environment to this one seemed so abrupt and incongruous that Tinula began to giggle to herself. This annoyed Winnie so much that she shouted, "Shut up," in a loud voice, provoking the house mother to scold them both, telling them to go to sleep quietly. For a while they kept quiet, and when Tinula was abrupt to fall asleep in the cozy fold of the soft blanket with a warm body next to hers, Winnie said to her out of the blue, "You know your boyfriend Herbert has a new girlfriend now." सुपरिटेंडेंट तिनुला को स्कूल के अस्पताल की तरफ ले गई, जहां छुट्टियों के बाद रात के समय जो लेट आते थे उनको सुलाने के लिए जगह बनाई गई थी। लेकिन अब उसको विनी वाला बेड ही उसको शेयर करना था और उसको वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको कल गांव में जो फटे हुए कंबलों में लड़के रात बितानी पड़ रही थी तो वो उसको याद आया और सुबह कैसे सुअर की चीख से उसकी नींद खुल गई थी। लेकिन अब उसको बहुत अच्छा लगा और वो हंसने लगी, तो विन्नी उस पर गुस्सा होकर बोलने लगी, "चुप करो।" तो इस वजह से हाउस मदर ने दोनों को चुपचाप सो जाने के लिए डांटा और जैसे ही वो अपने साथ सो रही लड़की के गर्म शरीर और नरम कंबल की गर्माहट में सोने ही वाली थी, तो विनी ने अचानक उसे बताया कि जानती हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड हुबर्ट को अब एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। The announcement was so sudden and so out of context that Tinula was taken completely by surprise. She was just 13 and to call Herbert a boyfriend was of course fanciful thinking. They had merely exchanged looks at church a few times, but being an outgoing sort of person, Tinula had once or twice mentioned his name and said that she found him nice. In her heart of hearts, she knew that nothing would come of this fancy, but secretly she did hope that he too had noticed her. The suddenness and the tone in which Winnie said the words hurt her deeply, and in order to camouflage her real emotions, Tinula started to giggle again and until tears came to her eyes and the giggles began to sound like muffled sobs. Winnie lay inert on her side while the girl next to her continued heaving. She wondered momentarily whether she was laughing or crying, but she really did not care. इस अचानक की बात से और तिनुला को एकदम से बहुत सरप्राइज़ मिला। अभी तो वह सिर्फ 13 ही साल की थी और ये बॉयफ्रेंड वाली बात तो उसको बहुत अजीब लगी। उसने चर्च में कई बार उसको देखा था और वो अच्छे स्वभाव का लड़का था। उसने भी जो है जिक्र किया था कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये उसको पता था कि वो भी उसको ध्यान से देखता था। जिस अंदाज से अचानक से विनी ने ये सब कहे तो उसको बड़ी अजीब लगा और दुख भी हुआ। तो वो एक नकली हंसी हंसने लगी अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी आ गए
और उसकी आंखों में आंसू आए और वो तब तक हंसती रही जब तक कि उसको सुबकियाँ नहीं आ गईं। लेकिन विन्नी को कोई असर नहीं पड़ा और वो जो है वहाँ पर ऐसे ही लेटी रही। और यहाँ पर तिनुला जो है वो रो रही थी और लेकिन विन्नी को इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी। Today, if you ask her, Tinula cannot tell you with any certainty whether she laughed or cried herself to sleep that night, but it was a night that stayed with her as the defining moment of a great transition. In many ways, the journey from her village to the school was traumatic enough, but the veiled antipathy of Winnie's remark made her realize that the barriers of life are not only the physical ones. If she felt any disappointment or even a little bit of jealousy when she was told that a boy that she liked had found a new girlfriend, she does not recall. What she recalls today is the deliberate attempt to hurt revealed by the tone in which the news was broken to her. She had always considered Winnie a good friend and was happy to meet her after the holidays. अब अगर आज हम विनी से तिनुला से पूछें तो वो कुछ नहीं बता पाएगी कि वो उस रात हंस रही थी या वैसे ही रोते रोते सो गई थी, क्योंकि वहाँ उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। और गांव से स्कूल की यात्रा उसके लिए हमेशा ही बहुत मुश्किल रहती थी, लेकिन विनी ने जिस तरीके से कहा था वो उसको अच्छा नहीं लगा। और उसको ये याद है कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसको एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई, तो उसको हताशा हुई क्योंकि विन्नी का बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, जो कि उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विन्नी इस तरीके से बोलेगी, क्योंकि विन्नी को वो हमेशा से ही एक अच्छी दोस्त समझती थी और छुट्टियों के बाद उससे मिल के वो बहुत ही खुश थी। बट नाउ once in a while she wonders vaguely about what happened to a boy called Herbert, whom she had never met face to face, but she often remembers a girl called Winnie and that unforgettable winter night, the girl who forced a 13-year-old girl to embark on a different kind of journey. कभी कभी उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से ये याद आता था कि हुबर्ट नाम का कोई लड़का था, तो क्या हुआ जिससे वो कभी भी नहीं मिली थी सामने से। लेकिन विन्नी जो कि उसकी फ्रेंड थी बहुत अच्छी, उसको वो नहीं भूल पा रही थी। और उस सर्दी की रात को भी, जिसने एक 13 साल की लड़की को एक अलग प्रकार की यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया, और वो यात्रा काफ़ी असहनीय हो गई थी। यहाँ पे जो यात्रा विनी ने शुरू की वो यात्रा मानसिक यात्रा थी, और वो एक पीड़ा वाली यात्रा थी कि कैसे कोई कुछ भी कह के आपके दिमाग को हिला सकता है। कहानी का शीर्षक जो है द जर्नी, वो अपने आप में बहुत ही डीप मीनिंग लिए हुए है। यहाँ पर 2 यात्रा बताई गई हैं, पहले तिनुला द्वारा की गई यात्रा और दूसरी जो है उसके भाई द्वारा यात्रा, जो कि वो स्कूल तक पहुँचते हैं, और एक ऐसी यात्रा जो यादों में बसी हुई है और वास्तविक यात्रा के अतिरिक्त एक ऐसी यात्रा जो हमेशा याद रहेगी और जो दिमाग में चलता ही रहेगा कि मेरी दोस्त विनी ने ऐसा क्यों कहा।